ज़्यादा डिस्टोरेशन आ रहा है, आवाज़ आपका क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, अभी अब आ रहा है? अब आवाज अभी क्लियर आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है सर, अभी बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके ओके, गुड. So uh, my question, we are talking about professionals, that doctors, lawyers, engineers, chartered accountants, architects, professors, we call them professionals. So they have some certain characteristics, and those characteristics make them different from others. What are those characteristics? Because the time is less, I will not show you the PowerPoint. I will share the PowerPoint. I will discuss, because discussion is more important. uh, Professionals, they have 5 important characteristics. First characteristic is professionals have very mastery over a big complex body of knowledge. So it is not mastery over a small content like carpenter, plumber. They have a mastery over a small skills, a small set of skills, or a small set of knowledge. But that doctors, engineers, professors, they have a mastery over a big as well as complex. There's difference between big and complex. Suppose I know many things, then it is my general knowledge is very good. I can win the Kaun Banega Crorepati. So I know a big body of knowledge, but a complex body of knowledge is different. Complex body of knowledge means which requires a hierarchical learning. Suppose I want to design a overbridge, railway overbridge, or I want to design a 100-story building. For that, what knowledge is required? That is a complex knowledge. Or I want to design a very fast computer. So that is a complex body of knowledge. Or I can do a operation of heart surgery. So this is complex body of knowledge. I can debate in the argue in the Supreme Court. That requires complex body of knowledge. So which is not a general knowledge, which requires learning over a period of time. So if you see our education system up to class 10th, we teach all the subjects. And for becoming a politician or becoming a businessman, the knowledge up to class 10th is sufficient. With your common sense and knowledge up to class 10th, because up to class 10th you learn about science, you learn about geography, political science, history, you learn about languages, mathematics, calculating interest. If you are properly educated up to class 10th, I'm using word properly, you can live well in the society. You can become a politician, you can become a businessman. But for becoming professional, after class 10th you choose a stream. For becoming chartered accountant, you choose commerce, so you study 11th and 12th commerce, then BCom 3 years, so that is 5 years. Then you do for 2-3 years study for chartered accountant, then you do company secretary and ICWA. So it is 8 to 10 years. Similarly, for becoming a good professor, after 10th class you choose physics, chemistry, maths. Suppose you want to become professor in engineering, physics, chemistry, maths, then 4 years B, so 2 plus 4, 6 years, then 2 years MTech, then it is 8 years. Then suppose you do PhD for 3 years minimum, 11 years. So up to class 10th again you study for 11 years, then you become a doctor, or for engineer, or a professor, or chartered accountant, or a good architect. So it is a big complex body of knowledge over which you have a mastery. And second thing, it is not only just passing the exam, you have to have a mastery over that. There is difference between passing the exam and having mastery over that. Passing the exam is one thing, but just passing B or MTech, you cannot become a professor unless until you score good marks. Good marks are the indication that you have mastered the knowledge properly. For example, after doing your B, a student who has done B just with passing marks can become a supervisor, or can become a marketing engineer. But in a true sense, he's not a professional. A professional engineer is an engineer who can design new things, who can design then that engineer is a knowledge worker, knowledge manager. Suppose a person just manages the production in a factory, then that engineer is not a true professional. But if I will come to some other quality also, but if he improves the quality of production, then or improves the efficiency of the production, then we can say that that engineer is a true professional. So for becoming professional, you need mastery of the subject. And for mastery, the indication is that you score good marks, then you become a professor. Now second thing is that when coming to professors, um, let me ask another question.
For starting level, for suppose science, for becoming a lecturer till now UGC, you can become, if you have scored very good marks in masters MSc and you have cleared the NET, or you have scored good marks in MA English literature and you have cleared the NET, you can become a assistant professor in colleges. And for becoming a school teacher also, master MA English is required for becoming a teacher of English in higher secondary school. So can we call a school teacher as professional? Hello, hello, are you No, able to hear my question? no, Hello, sir. no sir, why? Unless and until one is having expertise in a particular domain, they cannot be called as a professional. So but a school teacher who is teaching 11th class 12th class English literature, or a physics in 11th class 12th class, or mathematics in 11th class 12th class, they are also having expertise in their domain of knowledge. They are also MSc, and MSc, if you are MSc, you clear the NET, you become a assistant professor in college. Hello, why most of the you are silent? Please tell yes or no. Let me whether all are attending or just sleeping, please. Sir, teachers do not require to teach complex things to the students. School teachers, okay, that is one point. Okay, any other point? But the qualification is same, MSc for both school teacher and assistant professor in a BSc first year, BSc college, UG college. Sir, there is also difference in curriculum and the logic level of and understanding level of the student. Okay, okay. Anything else? Okay, this is They are if you teaching in a higher, sir. okay, okay, Sir, they are teaching in a higher level, and that is more specific to a particular domain. So okay, probably called as professionals. okay, okay. Any other point? Any other point? Now, if you, this is the problem. This is the problem, that we don't know what are our responsibilities. Actually, and that's why you are not able to differentiate between a school teacher and yourself. And let me be very honest, it is not your mistake, it is the mistake of our seniors, our teachers, who have not told you the responsibility of a higher education faculty and why you are called professional. Professionals create new knowledge. School teachers are not supposed to create new knowledge, they are not supposed to engage in research, but professionals are at the top of their profession. So suppose a physics teacher in a school is supposed to teach the fundamentals, the basic physics, which is not changing, but a university teacher is supposed to do research in physics, do research in chemistry, do research in mathematics. You are supposed to do research in engineering, and that makes a higher education faculty a professional as compared to school teacher. Even when you do the projects in polytechnics, we have less opportunity for research, I do agree, but in engineering colleges and in polytechnics also, when we do research, good projects, some research component is there. So it not necessarily there, but not only doing research, learning new knowledge. School teachers, the knowledge is static. What is being taught in school is same, nearly same. But in higher education, suppose you are teaching electrical engineering, you are teaching mechanical engineering, the new technologies are coming. So not you have to create the new knowledge, you have to learn new knowledge also. So all these professions, doctors, lawyers, chartered accountants, they are supposed to continually learn new things and do research also and create new knowledge. That makes them different from others. If you visit the any lawyer's chamber, you will see the lot of black bounded volumes of the cases. They study the cases of Supreme Court. Hello, કાયમી શબ્દ છે જ નહીં અહીંયા. hello, are you able to hear? Hello, hello, please don't. Raval Please sir, mute. mute your mic. Mute your mics. If you're not talking to me, please mute your mic. If you're talking to me, then unmute your mic. Okay. So research component is there. Not only doing research, learning what others are doing.
So higher education teachers, they are supposed to read the journals. School education teachers, they are not supposed to read the journals. They are not supposed to do the research. Do you agree with me? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. So Yes, sir. okay. Please, if you are not talking to me, please mute your mic. Somebody is having crosstalk. Okay. Now my question is, have you ever thought that school teachers are given 6 periods in a day, but higher education faculty, they are supposed to not teach 3 or 4 periods in a day? Why they are given free time? Hello? Hello? अरे प्लीज भाई आपस में बात मत करो. कौन बात कर रहा है? कुरैशी जी, मना कीजिए उन्हें. सर यस सर ओके उनको बोल देता हूँ सर. हाँ, उनको फोन करके बोलिए और म्यूट करें वो अपना माइक. हेलो, हाँ प्लीज मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए. स्कूल एजुकेशन में 6 पीरियड पढ़ाने पड़ते हैं टीचर को दिन में. हायर एजुकेशन में 3 या 4 पीरियड ही क्यों दिए जाते हैं? बाकी टाइम फ्री क्यों दिया जाता है? We have to do research. Activities. Yes. Research, Hello? evaluating students in a better. तो स्कूल में इवैल्यूएट नहीं करते क्या? स्कूल टीचर से इवैल्यूएशन नहीं करते क्या? असाइनमेंट्स चेक स्कूल टीचर तो ज्यादा होमवर्क क्लास वर्क चेक करते हैं. To carry out project and research work. Spoon feeding is not required for higher education. ओके, सो स्पून फीडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. सो फ्री पीरियड क्यों दिया जाता है? देन व्हाई सैलरी? Free कहाँ होता है? नहीं, फ्री टाइम टेबल में एक टीचर का जो लोड है 3 पीरियड होता है. बाकी का स्कूल टीचर का 6 पीरियड होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी स्कूल टीचर्स की भी होती है. कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, सब असाइनमेंट्स, होमवर्क सब स्कूल टीचर भी करता है. लैब्स स्कूल टीचर भी करता है. बट हायर एजुकेशन टीचर को कम पीरियड्स क्यों दिए जाते हैं? कभी सोचा आपने? State of art change होता रहता है, तो we need to be continuous in learning और नई नई चीजें सीखना है हमें. Okay, agreed. You are right. So it is given more time to learn new things. But if we are not learning and create new knowledge and learn the new knowledge created by others, तो अगर हम जर्नल्स नहीं पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग के, अगर हम if we are not doing that, then we are not a true professional. So the professional की second characteristic है, they create new knowledge and they update themselves what is happening throughout the world, because they are at the top. स्कूल एजुकेशन में अगर मान लो कोई नया सब्जेक्ट पढ़ाना इंट्रोड्यूस किया, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, तो उसकी ट्रेनिंग दे दी जाएगी और उसको करिकुलम में एनसीईआरटी के टीचर्स करिकुलम में डालेंगे. बट in our case we have to make our own curriculum. Professors are at the top. Nobody is there to guide them. They have to take their own decisions. So they have to update themselves continuously. Agreed? And why professors are given more salary as compared to school teacher? Higher secondary school teacher में भी MSc है and university teacher का भी MSc. Why they are given more salary? Please. कभी सोचा आपने? क्यों मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आपका डिफरेंस पता चले, आपका पोटेंशियल पता चले, आपकी जिम्मेदारी पता चले. प्लीज. व्हाई दे आर गिवन मोर सैलरी? बताइए. हेलो, आप लोगों को ज्यादा सैलरी मिल रही है स्कूल टीचर से इफ वी कंपेयर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर. सो बताइए, आर यू एबल टू हियर माय क्वेश्चन? प्लीज. यस सर. हाँ, तो बताइए, आपको ज्यादा तनख्वाह मिल रही है, आपको पता ही नहीं क्यों मिल रही है, हैं? प्लीज. कभी सोचा आपने? अरे भाई सब सर हमें प्रोफेशनल्स. हाँ सर हमें प्रोफेशनल्स हैं. हाँ हमें इंजीनियर्स तैयार करना है, या हाँ. जो लोग मेडिकल में उनको डॉक्टर्स बनाना है, उनको सोसाइटी को प्रोफेशनल्स देने हैं सर. वो हाँ, एक तो चीज है. हाँ. Sir, we create industry ready products or professions. ओके, पर वो भी तो फाउंडेशन बनाते हैं. फाउंडेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट. फाउंडेशन दे क्रिएट, स्कूल एजुकेशन दे क्रिएट द फाउंडेशन. अगर फाउंडेशन ही अच्छी नहीं होगी तो आगे कैसे बनेगा? एक्चुअली क्या है, जो पहली बात आपने रिसर्च वाली बात है, हु कैन डू द रिसर्च. एक्चुअली जो मास्टरी है, हु कैन क्रिएट द न्यू नॉलेज. न्यू नॉलेज क्रिएट करने का मतलब है जिसको मास्टरी हो गई है, एग्जिस्टिंग नॉलेज पे मास्टरी हो गई है, ओनली दैट पर्सन कैन क्रिएट द न्यू नॉलेज. तो क्या है कि जिसने एमएससी 55% मार्क्स से पास किया है, वो 12th क्लास तक फिजिक्स पढ़ा सकता है अच्छे ढंग से, परंतु वो
नई फिजिक्स में नया रिसर्च वो तभी कर पाएगा जब उसके एक्चुअली 80% मार्क्स आए हो, 70% मार्क्स आए हो। मार्क्स आर इंडिकेटर। अब अगर उसको फर्जी मार्क्स है तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल मार्क्स। तो अगर एक्चुअल किसी को 55% मार्क्स आए तो वो रिसर्च के लिए उतना कैपेबल नहीं है जितना कि 80% मार्क्स वाला कैपेबल है। तो जिसके ज्यादा मार्क्स हैं वो ज्यादा रिसर्च, जिसने उसने मास्टर 55% मार्क्स है, इट मींस आपने एग्जिस्टिंग नॉलेज का 55% ही सीखा है। बट इफ यू वांट टू डू द रिसर्च, इफ यू वांट टू क्रिएट न्यू नॉलेज, तो न्यू नॉलेज तो एग्जिस्टिंग नॉलेज के आगे है ना। तो जब तक आप एग्जिस्टिंग नॉलेज को 70% 80% नहीं सीखेंगे, हाउ कैन यू क्रिएट न्यू नॉलेज। तो अभी इंडिया में जो अभी अभी भी जो चल रहा है कि हायर एजुकेशन के लिए फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, 55% होना चाहिए, दैट इज रॉन्ग। इट वाज गुड 30 इयर्स अगो, 40 इयर्स अगो, व्हेन 55% मार्क्स लाना भी बड़ी बात होती थी। अभी आज के युग में शुड बी, इफ आई बिकम द एजुकेशन मिनिस्टर, आई वुड से कि इट शुड नॉट बी लेस देन 80% if you want to become a faculty in a higher education institute. So because if you want to do the research, you should have a mastery, and जो जिसके ज्यादा मार्क्स आए उसको ज्यादा सैलरी देंगे तभी तो वो आएगा आपके इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करेगा। दैट्स व्हाई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर गिवन, फैकल्टी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर गिवन मोर सैलरी। सो प्रोफेशनल्स create new knowledge and they do research, and second thing, they learn new knowledge created by others. So this is another important characteristics. तो अभी तक दो characteristics मैंने बताई हैं। First is professionals must have a mastery of big and complex knowledge. Second, they continue to learn new knowledge on their own. उनको कोई बताने वाला नहीं है। They have to learn on their own because they are at the top. प्रोफेसर को कौन पढ़ाएगा, उनको खुद पढ़ना है। They have to decide themselves. डॉक्टर है, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है, डीएम डॉक्टर है, उसको कौन बताएगा कि उसको नई टेक्नोलॉजी क्या सीखना है, नया मेडिसिन कौन से सीखनी है, नए ऑपरेशन के प्रोसीजर कौन से सीखने हैं। दे हैव टू डिसाइड, लर्न ऑन देयर ओन। दैट्स व्हाई लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात आती है। अभी जो एनबीए बात कर रहा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग मीन्स लर्निंग विदाउट टीचर। व्हेन देयर इज नो टीचर, इवन देन यू शुड कंटिन्यू टू लर्न। सो प्रोफेशनल्स, जैसे कारपेंटर है, कारपेंटर के ऊपर तो एक सब इंजीनियर है जो बताएगा उसकी गलती हो, सब इंजीनियर के ऊपर एक इंजीनियर है जो उसकी गलती बताएगा, बट इंजीनियर की गलती कौन बताएगा? तो इंजीनियर को तो खुद सीखना है, प्रोफेसर को खुद सीखना है। स्कूल एजुकेशन का टीचर है, उसको एनसीईआरटी के प्रोफेसर बताएंगे कि कैसे पढ़ाना है, क्या करिकुलम बनाना है, बट इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर है, उसको तो खुद करिकुलम बनाना है, उसको खुद टीचिंग मेथड्स बनाने हैं, उसको खुद पीएचडी गाइड करनी है, नई नॉलेज क्रिएट करनी है। तो they should continue to learn on their own when there is no teacher, so that they should become self directed learner. That is why professionals के लिए life long learning skills, self directed learning skills are very important. So अगर आप, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि if you are not reading journals, okay, पॉलिटेक्निक में रिसर्च की संभावना कम है, but as in polytechnics definitely you should कंटिन्यू टू रीड रिसर्च। फॉर एग्जांपल विंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल में विंड टेक्नोलॉजी आ गई, आपका सोलर टेक्नोलॉजी आ गई, जो कि 10 साल पहले नहीं थी कॉमर्शियली। अब यू हैव टू लर्न ऑन योर ओन। जनरल नॉलेज पढ़ते थे विंड और सोलर का, बट अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गए ऑटोमोबाइल में, जीपीएस टेक्नोलॉजी आ गई। So all these things you have to continuously update. In every branch new technologies are coming. So if you're not doing research, at least read the researches done by others so that you can make curriculum according to that. So that is the second characteristic of professionals. And if we are not doing this, then it is automatically unethical behavior. I will come to it. If we are not having mastery of over the complex body of knowledge, if we are not having learning new things, then it will lead to unethical behavior. For example, you are not reading new journals and new technologies, and you are supposed to make the curriculum for your institute. How you will make? So that curriculum will be outdated. So it is unethical behavior because you are not serving the society for which society is paying you. मान लीजिए आप करिकुलम की टीम में नहीं है, पर आपने नई टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी, अब करिकुलम किसी ने एक्सपर्ट ने बना दिया नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अब आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे अगर अनलेस अंटिल यू हैव मास्टर्ड दैट टेक्नोलॉजी। और अगर आपने किसी तरह काम चलाई पढ़ा भी दिया, आपके पास आंसर शीट्स आएंगी दूसरे कॉलेज की चेक करने के लिए, सिंस यू योरसेल्फ डोंट नो द करेक्ट मास्टर दैट टेक्नोलॉजी, हाउ विल यू असेस दैट आंसर शीट? सो if you are not engaging in these characteristics, if you are not having these characteristics, you are not true professional. Okay. Third thing is professionals are engaged in high stake activities. They involve themselves in
high stake activities. High stake activities means when they work, they their work leads to the some life making decisions. एक डॉक्टर है, डॉक्टर के डिसीजन से मरीज ठीक हो सकता है, या ठीक हो भी गया तो उसको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या मर भी सकता है, या परमानेंट डैमेज कुछ हो सकता है. और इफ लॉयर इज नॉट गुड, यू मे एंड अप इन जेल. सिमिलरली, इफ ए टीचर इज नॉट गुड, स्टूडेंट्स लाइफ इज स्पॉइल्ड. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल्स एंड शॉपकीपर्स. शॉपकीपर्स के कस्टमर होते हैं, प्रोफेशनल के क्लाइंट होते हैं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड कस्टमर? Can somebody tell? Hello? Hello? Are you able to hear my question? Hello? क्लाइंट होता है सर, उसको कस्टमर और क्लाइंट में क्या डिफरेंस होता है? डॉक्टर का क्लाइंट होता है. हाँ सर, क्लाइंट होता है ना, वो रेगुलर और फ्रीक्वेंटली जाता है जहाँ पर भी जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है सर्विस के लिए, और कस्टमर मींस रेयरली. ओके, नहीं, पर जैसे हम, मेरी किराने की दुकान है, उसमें तो मेरी वाइफ मुझे हफ्ते में 2 बार भेजती है, तो मैं तो रेगुलर जाता हूँ किराने की दुकान पे, कई बार रोज भेजती है. नहीं, किसी पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए आप जाए ना, तो सर्विसेज, हाँ, तो सर्विसेज, देयर इज कस्टमर परचेज, कस्टमर गुड्स खरीदता है, क्लाइंट सर्विसेज लेता है. दैट इज वन डिफरेंस. बट जैसे अगर आप होटल में ठहर रहे हैं, तो होटल में ठहरते हैं, तो होटल के भी आप क्लाइंट हैं. बट जो प्रोफेशनल के क्लाइंट हैं और जो कस्टमर है, उसमें व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? आप बस में यात्रा कर रहे हैं, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, एरोप्लेन में यात्रा कर रहे हैं, तो भी आप कस्टमर हैं. आप रेगुलर यात्रा करते हैं उस बस से, बट यू आर नॉट क्लाइंट. आप होटल में रेगुलर जाते हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, यू आर टेकिंग सर्विसेज, होटल में ठहर रहे हैं, फिर भी आप क्लाइंट नहीं है, आप कस्टमर है. बट सर्विसेज लेने पे भी कस्टमर है. बट जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ जब आप जुड़ते हैं, देन यू आर क्लाइंट. सर मेरे ख्याल से क्लाइंट है वो एडवाइस लेता है और कस्टमर कुछ प्रोडक्ट लेता है. प्रोडक्ट भी लेता है, सर्विसेज भी लेता है. क्लाइंट भी, क्लाइंट जैसे आप होटल में ठहरे, तो भी तो आपने सर्विसेज ली, प्रोडक्ट नहीं खरीदा आपने. सर्विस डॉक्टर से या लॉयर से, मतलब उसको एडवाइस कुछ मिलती है. एडवाइस मिलती है, एग्रीड. तो जहां एडवाइस मिलती है, वहां पर इट इज वेरी, एडवाइस इज अबाउट द लाइफ डिसीजंस, एंड इट इज अबाउट द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. बिकॉज जैसे कस्टमर है, आप हैं, तो आप टेलीविजन खरीदते हैं, यू नो अबाउट द क्वालिटी, यू डोंट नो हाउ टेलीविजन इज वर्किंग, बट यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ टेलीविजन, कि इसका रिसेप्शन कैसा है, इसमें कितने चैनल हैं, ये दिखने में कैसा है, इसकी आवाज कैसी है. विद कॉमन सेंस यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ टेलीविजन. विद कॉमन सेंस यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ होटल और क्वालिटी ऑफ बस इन विच यू आर ट्रेवलिंग. बट फॉर व्हेन यू विजिट ए डॉक्टर, आपको खुद को नहीं पता आपकी बीमारी क्या है, आपको सही दवा कौन सी है, वो सही ऑपरेशन जरूरी है, दवा से ठीक हो जाएगा. क्योंकि ये, इसमें आपने जो एडवाइस शब्द किया, उसमें जो एडवाइस है वो एक्सपर्ट एडवाइस है, जो कि हर व्यक्ति कॉमन सेंस से नहीं ले सकता, और जो एडवाइस है वो आपके लाइफ को अफेक्ट कर सकती है. सिमिलरली, आप टीचर, स्टूडेंट आपके पास आता है बी करने, उसको मालूम नहीं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, वो तो करिकुलम आपने बनाया है, उस करिकुलम में कौन सी यूनिट्स है, टीचिंग मेथड्स कौन सा सही है, असेसमेंट मेथड्स कौन सा सही है, लैब में कौन से एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, वो स्टूडेंट को नहीं पता, वो आप ही को पता है. तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनल की ज्यादा है. एंड बट कॉम्प्लेक्सिटी इसमें यह है कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है, वो खाली प्रोफेशनल पर डिपेंड नहीं करती. आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, पर स्टूडेंट ने घर पे जाके पढ़ा ही नहीं, तो क्वालिटी दोनों पे डिपेंड करती है. पर जैसा आपने टेलीविजन खरीदा, तो टेलीविजन की क्वालिटी सिर्फ सप्लायर पर डिपेंड करेगी, होटल की क्वालिटी सिर्फ होटल पे डिपेंड करेगी, बस कैसी चल रही है वो बस पे डिपेंड करेगी. परंतु प्रोफेशनल और क्लाइंट में जो है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डिपेंड्स ऑन बोथ. डॉक्टर को आपने सिम्टम ही ठीक नहीं बताए, तो डॉक्टर क्या करेगा? या डॉक्टर ने मेडिसिन दी, आपने ली नहीं, या प्रिकॉशंस फॉलो नहीं की, देन आप ठीक नहीं होंगे. तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग एंड इट अफेक्ट्स द लाइफ चांसेस. सो दिस हाई स्टेक एक्टिविटीज के कारण इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर स्टूडेंट क्लास में आता नहीं है, या ये क्लास में आता है, घर पे होमवर्क नहीं करता, तो हु विल डिसाइड की क्वालिटी सही थी कि नहीं थी? और समटाइम्स इट इज सच ए कॉम्प्लेक्स कि यू आर टीचिंग वेल, और आपने स्टूडेंट को भी सही पढ़ाया, परंतु मार्केट में उसको जॉब ही नहीं मिल रहे. 10 साल पहले कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ली, आपने उसको सजेस्ट किया यू शुड टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छी पढ़ाई स्कूल में, कॉलेज में उसको इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी पढ़ाई गई, बट उसको जॉब इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं मिल रहा. नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट?
सो सच ए कॉम्प्लेक्स हाई स्टेक डिसीजंस हैं जो जिसमें की क्वालिटीज डिपेंड्स ऑन बोथ, और वंस क्वालिटीज इज नॉट गुड इट इज डिफिकल्ट टू रीगेन द लॉस। आपने टेलीविजन आपका खराब आ गया, आप दुकानदार से जाके रिप्लेस कर सकते हैं, अगर उसने टेलीविजन रिप्लेस नहीं किया तो भी चलो आपका 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का नुकसान होगा। परंतु अगर एक स्टूडेंट ने एक कॉलेज में एडमिशन लिया और उसका 1 साल बर्बाद हो गया, तो दैट 1 ईयर ही कैन नेवर गेट दैट 1 ईयर। या डॉक्टर के मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट हो गया तो उसको दूर करना बहुत मुश्किल है। सो इट इज ए हाई स्टेक डिसीजंस इन विच प्रोफेशनल्स आर इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। Do you understand? When a student comes to a teacher, students give his fate, his life to the teacher. He surrender his mind to the teacher. When a person goes to the doctor, person surrender his body to his body to the doctor. When a person goes to the lawyer, surrenders his fate to the lawyer. So they have the high stake decisions. Of course, politicians also take high stake decisions, but in professionals, in most of the cases, professionals take the high stake decisions, and their work affects the life chances of the pupil. Do you agree? Hello? Hello? Yes, sir. Yes. And the quality depends on both. So it is very complex. Now, इसी से फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है जो इससे जुड़ी हुई है, वो ये है कि जब पता नहीं है कि सही इलाज क्या है, जब डॉक्टर के पास आप जाते हो और डॉक्टर ने कोई भी दवा लिख दी, आपको तो नॉलेज नहीं है, पर आप क्यों लेते हैं दवा जो डॉक्टर लिखता है? इसके लिए क्या चाहिए कि आप डॉक्टर की बात माने, या टीचर आपके पास फेथ और ट्रस्ट। सो द प्रोफेशनल्स वर्क ऑन ट्रस्ट और फेथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई प्रोफेशनल्स के लिए प्रोफेशनल की जो क्वालिटी है, प्रोफेशनल्स को सोसाइटी बहुत रेस्पेक्ट देती है, सोसाइटी ट्रस्ट के ऊपर, और उस ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इथिकल बिहेवियर की बात यहां से आती है। अगर ट्रस्ट खत्म हो गया तो प्रोफेशनल्स काम नहीं कर सकते। मैं आपका टाइम 10-15 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, प्लीज ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो ऑटोमेटिकली इथिकल बिहेवियर होने लगेगा। आप जो प्रोफेशनल्स हैं उनको सोसाइटी, अभी ट्रस्ट कब खत्म होता है? आजकल डॉक्टर्स का ट्रस्ट खत्म हो रहा है। पहले लोग डॉक्टर्स के पैर छूते थे, टीचर्स के पैर छूते थे, टीचर्स के अभी भी छूते हैं। इंडियन कल्चर में आई फील प्राउड व्हेन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, स्टूडेंट का रिलीजन कुछ भी हो, कास्ट कुछ भी हो, और टीचर का रिलीजन, कास्ट कुछ भी हो, पर स्टूडेंट जो टीचर अच्छा होता है उसके पैर छूते हैं। तो ये आई फील प्राउड ऑफ इंडियन कल्चर। तो सोसाइटी आपको रेस्पेक्ट दे रही है, परंतु वो रिस्पेक्ट कम हो रही है आजकल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो ट्रस्ट कम क्यों हो रहा है? क्या कारण है? प्लीज बताइए। माल प्रैक्टिसेस क्यों करते हैं लोग? पैसे अर्न करने के लिए। टू अर्न मोर मनी। ज्यादा पैसे क्यों अर्न करते हैं? टू फैसिलिटेट हाई प्रोफाइल और हाई स्टेटस, to impress others. There may be multiple reasons, sir. Okay, agreed. तो हाई इंप्रेस करने के लिए, स्टेटस के लिए इंप्रेस क्यों करता है आदमी? रेस्पेक्ट के लिए, ठीक है ना? Right. परंतु जब आपके कोई पैर वैसे ही छू रहा है बिगर पैसे के, तो इट इज अल्टीमेट रेस्पेक्ट। पर क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं, एक सोसाइटी में वी आर हैविंग कंफ्यूजन कि पैसे वाले की रेस्पेक्ट हो रही है, बट सोसाइटी में हिस्ट्री नेवर रिमेंबर्स द बिजनेसमैन। आई एम नॉट सेइंग कि बिजनेसमैन की सोसाइटी में इंपॉर्टेंस नहीं है, बिजनेसमैन की अलग इंपॉर्टेंस है। पर मैं आपसे पूछूं कि 18th सेंचुरी के पहले भी बड़े बड़े बिजनेसमैन रहे, किसी बिजनेसमैन का नाम बताइए, आप बता पाएंगे क्या? पर मैं बोलूं कि 18th सेंचुरी के पहले के साइंटिस्ट के नाम बताइए, तो आप बताएंगे न्यूटन, फेराडे, आपका डेवी और पास्कल, और इंडिया में आप बताएंगे चरक, सुश्रुत, नागार्जुन, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट। सो लिटरेचर में आप बताएंगे तुलसीदास, कबीरदास, in Mirabai, many people who are good in literature. So प्रोफेशनल्स के नाम हिस्ट्री भी याद रखती है। So, आपके शहर के कोई पूछे कि आपके अहमदाबाद में इतने बिग रिच बिजनेसमैन है, आई सी थाउजेंड्स ऑफ मर्सिडीज, अहमदाबाद के बिजनेसमैन के नाम बताइए, तो लोग
दो लोगों के नाम, बस अडानी के बाद कोई दूसरा नाम ही नहीं बता पाते. बट इफ आई आस्क प्रोफेसर्स, फेमस आर्किटेक्ट्स, फेमस डॉक्टर्स, फेमस लॉयर्स, लोग नाम बताते हैं. तो सोसाइटी गिव रेस्पेक्ट, नेम एंड फेम टू द प्रोफेशनल्स. बट हम लोग सोच रहे हैं कि पैसे से नेम एंड फेम आता है. नेम एंड फेम एंड रेस्पेक्ट पैसे से नहीं आता. मनी इज रिक्वायर्ड अप टू सम लेवल. मनी इज रिक्वायर्ड फर्स्ट फॉर नेसेसिटी, देन मनी इज रिक्वायर्ड फॉर कंफर्ट्स. इसके बाद जो मनी रिक्वायर्ड है वो लोग गलतफहमी में सोचते हैं. कंफर्ट्स के बाद या तो लग्जरीज के लिए चाहिए, तो लग्जरीज लीड टू द स्पॉइलिंग योर लाइफ. कई लोग सोचते हैं कि मनी से स्टेटस आएगा, दैट इज रॉन्ग. स्टेटस प्रोफेशनल्स का सबसे ज्यादा है. एक संस्कृत का श्लोक है, उसका अर्थ यह है कि राजा की पूजा तो राज्य में होती है, परंतु विद्वान की पूजा पूरे विश्व में होती है. अगर हम कहें कि ब्रिटिशर्स हेनरी फिफ्थ या जॉर्ज फिफ्थ या हेनरी सिक्स्थ या एलिजाबेथ, उसको इंडिया में उसके बारे में पढ़ाना जरूरी नहीं है. बट इंडिया में हमको न्यूटन को पढ़ाना जरूरी है, आइंस्टीन को पढ़ाना जरूरी है. चाहे वो इस्लामिक वर्ल्ड हो, चाहे क्रिश्चियन वर्ल्ड हो, चाहे हिंदू वर्ल्ड हो, वहां पे हिंदू कंट्री हो, वहां पे न्यूटन आइंस्टीन को पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि वो विद्वान थे. तो विद्वान की पूजा पूरे विश्व में होती है. प्रोफेसर जो ज्ञानवान है उसकी पूजा पूरे विश्व में होती है. राजा की पूजा तो सिर्फ उसके राज्य में होती है. आज कोई भी मुख्यमंत्री है, उसकी रेस्पेक्ट उसके स्टेट में है, परंतु जो विद्वान है उसकी रेस्पेक्ट पूरे इंडिया में है, पूरे विश्व में है. तो that we have to understand that professionals को society respect देती है. पर हम लोग मेल प्रैक्टिस, हम लोग मीन्स not all of us, some of us मेल प्रैक्टिसेस में लगकर we lose the trust. आज डॉक्टर्स का ट्रस्ट इसीलिए खत्म हो गया है कि कुछ डॉक्टर्स ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में. सेकंड थिंग, वी आर इन द बिजनेस ऑफ नॉलेज. हमने को कंटिन्यूअसली नॉलेज अर्न करना है. वी हैव टू अर्न द नॉलेज एंड यूज द नॉलेज. उस नॉलेज को यूज करना है, उस नॉलेज को अर्न करना है, उस नॉलेज तो 24/7 आवर फोकस शुड बी नॉलेज. एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स अस द बेस्ट सैलरी. प्रोफेसर्स का स्केल आपको मालूम है आईएएस ऑफिसर्स से अच्छा है. डू यू नो इट? आपको पता है 16 साल में अगर आप पीएचडी हैं तो पीएचडी अगर है 16 साल में तो उसको 10,000 का स्केल मिल सकता है, जो कि चीफ सेक्रेटरी का स्केल होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज का स्केल होता है. तो एक नंबर में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा सैलरी दे रही है, बच्चे आपके पैर छू रहे हैं, तो व्हाट अदर रेस्पेक्ट यू नीड है. बट एंड दैट मनी इज सफिशिएंट फॉर लिविंग कंफर्टेबल लाइफ एंड नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. पर अगर हम ज्यादा पैसा कमाना चाहते, बिजनेसमैन के लिए पैसा कमाना जरूरी है, क्योंकि वो बिजनेसमैन उस पैसे को कमा के इंडस्ट्री खोलता है, बड़ी शॉप खोलता है, बड़े शोरूम खोलता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, उससे फिर फर्दर अर्न करता है. तो बिजनेसमैन अर्न्स द मनी एंड यूज द मनी. सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे आर इन द बिजनेस ऑफ पावर, दे आर इन द ऑक्यूपेशन ऑफ पावर. एडमिनिस्ट्रेटर्स पावर गेन करते हैं, उस पावर का यूज सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करते हैं. कलेक्टर हो, पुलिस ऑफिसर्स हो, आर्मी ऑफिसर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, दे एक्वायर पावर एंड यूज दैट पावर फॉर टेकिंग डिसीजंस एंड सर्विंग द सोसाइटी. हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, बट they accumulate power. But professionals, they accumulate knowledge and use that knowledge for serving the society. पैसा उनके लिए सेकेंडरी होना चाहिए. पर जब पैसा मुख्य हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स चीज है. आप एक डॉक्टर ऑनेस्ट हो सकता है और अच्छे से इलाज कर रहा है, परंतु फिर भी मरीज मर जाता है. तो अभी क्या है, पेशेंट सोचते हैं कि अगर डॉक्टर कम फीस लेता है तो पेशेंट विल नॉट बी एंग्री. पेशेंट सोचेंगे कि ये कम फीस लेता है, ये इसका फोकस मनी नहीं है. बट अगर उसने ज्यादा फीस लेता है तो पेशेंट सोचेंगे, पेशेंट के रिलेटिव सोचेंगे कि इसने ज्यादा फीस के चक्कर में ज्यादा पेशेंट देखता है, और ज्यादा पेशेंट देखता है, इस चक्कर में उसने ज्यादा टाइम नहीं दिया और कुछ गलती हो गई और हमारा पेशेंट मर गया. सो ट्रस्ट हैज बीन इरोडेड बिकॉज ऑफ मनी. And there is a conflict between knowledge, power and money. Knowledge, power और money एक साथ नहीं रह सकती. जो politician है अगर वो बिजनेस में आ जाएगा तो वो बिजनेस नहीं कर सकता. There will be conflict of interest. बिजनेसमैन नॉलेज ज्यादा एक्वायर नहीं कर सकता. अगर एक डॉक्टर है वो अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, पर अगर वो नर्सिंग होम खोल देता है तो उसका दिमाग फिर ट्रीटमेंट से हटके इस पे हो जाता है, कितने उसके पलंग खाली है, नर्स की तनख्वाह देनी है, कंपाउंडर की तनख्वाह देनी है, बिल्डिंग का EMI भरना है. सो focus changes. So focus of professionals is knowledge, and if that focus changes then it erodes the trust. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग समझें कि हम लोग किस टाइप के जॉब में हैं. आवर जॉब इज नॉलेज बेस्ड. अगर हमको नॉलेज से प्यार नहीं है तो हमें इस प्रोफेशनल्स में नहीं रहना चाहिए, प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए. वी शुड, अगर वी लव मनी देन वी शुड गो इन बिजनेस. नो प्रॉब्लम, बिजनेसमैन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप प्रोफेशंस में रहकर ज्यादा मनी के चक्कर में पड़ेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे. कई लोग हैं, टीचर हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, गाइड छापते हैं, अतुल की, बालाजी की, शिवानी की गाइड छापते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं. तो वो क्या करते हैं, फिर लेट कॉलेज आएंगे, जल्दी जाएंगे, क्लास में ठीक से नहीं पढ़ाएंगे, तो दे विल लूज रेस्पेक्ट
जो थ्रू आउट लाइफ का जो मैक्सिमम टाइम है जहां स्पेंड करते हैं, द कम्युनिटी ऑफ देयर कम्युनिटी जो है, वो जो कम्युनिटी ऑफ प्रोफेसर्स है उसमें वो रेस्पेक्ट लूज कर देंगे, और लास्ट में क्या होगा कि वो 50 लाख या 1 करोड़ रुपए ज्यादा कमा पाएंगे। अगर वो बिजनेस में चले जाते तो हो सकता है 100 करोड़ कमा लेते, 10 करोड़ कमा लेते। तो वी शुड be clear about our purpose of life. If we love money, we should go in business. If we love knowledge, then we should be in the profession, and that should be very clear. And we should try to, and if we don't do that, then we will lose the trust of our clients. And if we don't have trust, it is difficult to manage. जो शिष्य वाली, गुरु शिष्य वाली बात है, गुरु शिष्य गुरु को ट्रस्ट करता है। जब ट्रस्ट डेवलप हो जाए आपका छात्रों का आपके प्रति, तभी आप गुरु बन पाएंगे, तभी आप एक ट्रू प्रोफेशनल बन पाएंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू एग्री विथ मी? हेलो हेलो सब लोग? यस सर। हाँ, अगर कोई आपको प्रैक्टिकली इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। प्रैक्टिकली जो मैं बात कह रहा हूँ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो बताइए। तो नो सर, एब्सोल्युटली। so that is possible, and that's why in India में अगर आप एंशिएंट इंडिया में जाएंगे तो एंशिएंट इंडिया में जो डॉक्टर्स थे, जो फिलोसफर्स, जो डॉक्टर्स थे, जो लॉयर्स थे, लॉयर्स मींस राजगुरु कहलाते थे, जो राजा को भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को भी पनिश कर सकता है, राजगुरु राजा को भी पनिश कर सकता था। तो राजगुरु थे, जो शिक्षक थे, मतलब जो टीचर्स थे, जो राजगुरु थे, जो वैद्य थे, ये सब लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। दे वर नॉट सपोज टू अक्यूमुलेट वेल्थ। आपको पता होगा प्राचीन भारत में, मैं आधुनिक भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ। जब आश्रम होते थे तो जो रिसर्च होता था आश्रम में होता था, आयुर्वेद, जो खगोल शास्त्र, ये सब जो डेवलप हुआ, ये आश्रम में जो रिसर्च होते थे उसमें डेवलप हुआ। तो उस समय जो ऋषि मुनि थे, जो साधु संत थे, वो वैद्य होते थे, वो शिक्षक होते थे, वो पैसा एक्यूमुलेट नहीं करते थे। इसीलिए उनको लोग रेस्पेक्ट करते थे, उनके पैर छूते थे कि आपको इतनी नॉलेज है, उस नॉलेज से आप पैसा कमा सकते हैं, पर आप पैसा ना कमा के आप समाज के लिए दे रहे हैं, देन यू गेट द रेस्पेक्ट। अगर कोई मर्सिडीज से आता है तो उसकी रेस्पेक्ट नहीं है कॉलेज में, उस टीचर की रेस्पेक्ट है जो क्लास में अच्छा पढ़ाता है। एक डॉक्टर अगर मर्सिडीज से आ रहा है और इलाज ठीक नहीं कर रहा तो उसकी रेस्पेक्ट नहीं है। मर्सिडीज में भी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसमैन टू शो हिज वेल्थ, बट फॉर ए डॉक्टर, फॉर ए लॉयर, फॉर ए टीचर, द क्वालिटी ऑफ सर्विस ब्रिंग्स द रेस्पेक्ट एंड नेम एंड फेम। और आप किसी बिजनेसमैन से पूछिए, जब बिजनेसमैन करोड़ों रुपए भी कमा लेता है, जब उसको वो सोचता है यार मेरी वो रेस्पेक्ट नहीं है, तो वो अपने पिताजी के नाम पे धर्मशाला खोलता है, हॉस्पिटल खोलता है, दान देता है, so that people give him respect. So to give respect, you have to provide services, and professionals provide services, and of course money is required. For money is not focus. Money should not be the focus of professionals. अभी unfortunately क्या हो रहा है कि जो लोग हैं, जो प्रोफेसर से, उनको गवर्नमेंट ने अच्छी तनख्वाह दी कि भाई उस तनख्वाह से वो कंफर्टेबल लाइफ जिए, और उनका ध्यान रिसर्च पे रहे, उनका ध्यान जर्नल्स पे रहे, पढ़ाई पे रहे। अभी पर वो प्रोफेसर्स क्या कर, उनको कम पीरियड दिए पढ़ाने के लिए, पर वो प्रोफेसर्स क्या कर रहे हैं, जो फ्री टाइम है और जो फ्री पैसा बच रहा है उससे शेयर मार्केट खेल रहे हैं, उससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, फिर प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, फिर प्रॉपर्टी में मकान बना रहे हैं, फिर उसको किराए पे दे रहे हैं। तो उसका उनका टाइम मनी मैनेजमेंट पे लग गया है, वेल्थ मैनेजमेंट पे लग गया है, ना कि नॉलेज को एक्वायर करके नॉलेज को बढ़ाने में। दैट्स व्हाई इंडिया इज लेकिंग। इंडिया में रिसर्च और हायर एजुकेशन की खराब हालत इसीलिए। गवर्नमेंट इज डूइंग देयर बेस्ट। गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो अच्छी सैलरी दे दी, प्राइवेट कॉलेजेस की भी फीस अच्छी कर दी, उस फीस से वो चाहे तो प्राइवेट कॉलेज वाले अच्छे टीचर्स को अच्छी तनख्वाह दे सकते हैं, बट आवर फोकस इज मनी, एंड दैट्स व्हाई हायर एजुकेशन इज नॉट एज गुड। एंड चाइना, इवन चाइना जो हमसे पीछे था 30 साल पहले, चाइना आज आगे निकल गया। सो वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ. So fourth quality is trust, and for trust we have to have focus on knowledge and not on money. And fifth quality, I will take 5 more minutes of you, and then we will bind up the session. The fifth quality is of professionals is they are self-regulating. Self-regulating का मतलब क्या है कि प्रोफेशनल्स की गलती और कोई नहीं बता सकता। प्रोफेशनल्स की गलती प्रोफेशनल्स ही बता सकते हैं। पॉलिटिशियंस की गलती एक सड़क चलता आदमी बता देता है, एडमिनिस्ट्रेटर की गलती सड़क चलता आदमी बता सकता है, दुकानदार की गलती सड़क चलता आदमी बता सकता है, पर प्रोफेसर ने क्लास में ठीक पढ़ाया या नहीं पढ़ाया एक प्रोफेसर ही बता सकता है। एक बच्चा कोर्ट में जाता है कि मेरे को कम मार्क्स मिले, तो जज नहीं बता सकता है कि उसको कम मिले या ज्यादा मिले। जज एक 2 प्रोफेसर्स की कमेटी अपॉइंट करेगा, वो बताएंगे कि इसको कम मार्क्स मिले या ज्यादा मार्क्स मिले। या पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कोई क्वेश्चन करता है डॉक्टर की, तो जज विल अपॉइंट अ कमेटी ऑफ 2 other doctors. So professionals are at the top of their profession. Nobody else can find out their mistake. They have to find out their mistakes themselves. इसलिए प्रोफेशनल्स के लिए सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आप अगर क्लास में पढ़ा रहे हो तो आपकी गलती बताने कोई नहीं आएगा, आपको अपनी गलती खुद देखनी है, आपको अपना इंप्रूवमेंट खुद करना है। तो अगर आप इंप्रूव करेंगे तो अपने आप इथिकल बिहेवियर होगा। आपको यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ कंटिन्यूअसली, उसके लिए यू हैव टू सेल्फ असेस योरसेल्फ। सेल्फ असेस मींस हर काम के बाद आप सोचें कि आप इस काम को और कैसे अच्छा कर सकते थे, बच्चों को और कैसे अच्छा पढ़ा सकते थे, वेदर यू हैव मैनेज द क्लास वेल और नॉट, व्हाट एल्स यू कुड हैव डन। जैसे मेरा था आज, अगर मैं लैपटॉप पहले से चालू करके रखता है एक अल्टरनेटिव कि अगर वहां पे इंटरनेट खराब होगा डेस्कटॉप पे ऑफिस का, तो मेरा हॉटस्पॉट मोबाइल से मैं अपना लैपटॉप चला लूंगा, तो शायद मैं 10-15 मिनट बचा लेता। सो आई हैव लर्न दिस लेसन कि मेरे को 2 कंप्यूटर पैरेलल तैयार रखने चाहिए कि अगर प्रॉब्लम हो, मेरे लैपटॉप कुछ स्लो स्टार्टिंग हुआ तो उसके कारण और टाइम खर्च हुआ। सो आई हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन माय परफॉर्मेंस। आई हैव टू, अगर मेरे को पावर पॉइंट बनाना नहीं आता तो मेरे को खुद सीखना चाहिए, सोचना चाहिए कि मुझे अच्छा पावर पॉइंट बनाना कहां से सीखूं, मैं कौन सी वेबसाइट से सीखूं। सो वी हैव टू बी सेल्फ असेसिंग अवरसेल्फ, ओनली देन वी विल इंप्रूव अवरसेल्फ। तो वी हैव टू बी एक्सपर्ट। नाउ एक्सपर्ट क्या होता है? एक्सपर्ट वर्ड और एक्सपीरियंस वर्ड दोनों इंग्लिश में सेम ओरिजिन से आए, EXP। सो विदाउट एक्सपीरियंस यू कांट बिकम एक्सपर्ट। पर कई लोग 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी एक्सपर्ट नहीं बनते, कई लोग 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद एक्सपर्ट बन जाते हैं। व्हाट फॉर दैट, जो लोग अपने एक्सपीरियंस पे का असेसमेंट करते हैं, अपने एक्सपीरियंस पे थिंकिंग करते हैं और वो उससे सीखते हैं और वो सेल्फ असेसर बनते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल्स, क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं है। छोटी पोस्ट पे जो है उसको बताने वाला है, पर जो बड़ी पोस्ट पे, जो टॉप पे, अगर पिताजी गलती करेंगे, माताजी गलती करेंगे फैमिली में, तो बच्चे क्या कर सकते हैं? तो यू आर एट द टॉप ऑफ द प्रोफेशन, यू हैव टू सेल्फ असेस योरसेल्फ। और फिर भी अगर कोई गलती करता है प्रोफेशन में, तो इसलिए प्रोफेशनल बॉडीज हैं, IST है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं, जो आपको आप मॉड्यूल 2 में सब हमने डिटेल में लिखा है। तो ये, अगर एक वकील भी अगर कोई मेल प्रैक्टिस करता है तो जज उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकता। जज बार काउंसिल से बोलता है कि उसका लाइसेंस कैंसिल करें, बिकॉज दे आर ऑटोनोमस, प्रोफेशनल्स आर ऑटोनोमस, दे आर सपोज टू टेक देयर ओन डिसीजंस। करिकुलम में क्या पढ़ाना है ये मोदी जी नहीं बता सकते, रूपाणी जी नहीं बता सकते, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम, या चुड़ासमा जी नहीं बता सकते, ये हम प्रोफेसर्स को डिसाइड करना है कि क्या पढ़ाना है। तो वी हैव टू सेल्फ असेस अवरसेल्फ। और अगर हम लोग गलती कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमको अपने आप को ही, हमारे समुदाय को, एक दूसरे को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसके लिए काउंसिल्स है, बार काउंसिल्स ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी फॉर टीचर्स, टेक्निकल टीचर्स एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सो दे कंट्रोल द प्रोफेशनल्स। सो प्रोफेशनल्स आर सेल्फ रेगुलेटिंग। और अगर सेल्फ रेगुलेटिंग है तो इथिकल बिहेवियर होगा, अगर इथिकल बिहेवियर नहीं होगा तो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा तो प्रोफेशनल्स काम नहीं कर पाएंगे। आपको एक लास्ट एग्जांपल देके खत्म करता हूं। आपने मेडिकल टूरिज्म का नाम सुना है? विदेशों से लोग इंडिया में इलाज कराने आते हैं, इवन यूरोप से आते हैं। आपको पता है अमेरिका और यूरोप से लोग इंडिया में इलाज कराने आते हैं? पता है आपको क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? क्योंकि वहां इलाज बहुत महंगा हो गया है। वहां इलाज महंगा क्यों हो गया? क्योंकि वहां पर इतना कॉमर्शलाइजेशन हुआ। कॉमर्शलाइजेशन होने के बाद क्या हो गया है कि अगर थोड़ा सा भी टेस्ट खत्म हो गया है और डॉक्टर से कोई गलती हुई, जबकि इतना कॉम्प्लेक्स है, डॉक्टर्स के बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी गलती हो सकती है, तो वहां पे लोग कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट करोड़ों रुपए का कंपनसेशन दे देता है पेशेंट को। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, फीस ज्यादा लेते हैं और अपना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं मेडिकल पेशेंट का, कि अगर कोई गलती हुई तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से उसको कंपनसेशन मिलेगा। तो उसके कारण फीस बढ़ गई है। फिर डॉक्टर्स हर इतने सावधानी से करते हैं, जरूरी नहीं हो तब भी सारे टेस्ट करवाते हैं। अगर आपके रिलेटिव्स अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, तो पूछिए उनको, अगर एक्सरे करवाना तो एक्सरे की डेट 5 दिन बाद मिलती है, क्योंकि इतने टेस्ट की इतनी लंबी क्यू है। तो वहां पे इलाज 5 दिन में तो बीमारी और बढ़ जाएगी। फिर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 5 दिन बाद मिलता है, क्योंकि डॉक्टर्स इतनी फॉर्मेलिटीज बढ़ गई है वहां इलाज के अंदर, क्योंकि ट्रस्ट खत्म हो गया। तो हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है वहां पे। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो बातचीत होती है उसको टेप रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि बाद में कोर्ट में जब जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा साहब पेशेंट ने मुझे सिम्टम ही नहीं बताए थे, पेशेंट बोलेगा मैंने बताए थे, तो उसका क्या प्रूफ होगा? तो उसका रिकॉर्ड किया जाता है, उसको टाइप किया जाता है, फिर सिग्नेचर किए जाते हैं। तो ट्रस्ट खत्म हो गया है, इसलिए वहां मेडिकल चल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स है। आप स्टूडेंट को डांट रहे हैं तो स्टूडेंट को सुधारने के लिए डांट रहा है, या स्टूडेंट को अपनी बीवी से डांट खा के आया है, अपने पति से डांट खा के आई है लेडी टीचर, या मेल टीचर अपनी बीवी से लड़के आया है इसलिए स्टूडेंट पे गुस्सा निकाल रहा है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो। तो ये सब विश्वास के ऊपर ही प्रोफेशन चल सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट को पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। तो अगर इसमें विश्वास खत्म हो गया तो नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि प्रोफेशनल्स को अपने आप को रेगुलेट करना है। अगर आज एक प्रोफेसर गलती करता है तो उसके कारण सारे प्रोफेसर बदनाम होते हैं, इसलिए सेल्फ रेगुलेशन करना है,
सोसाइटी अपने कलीग्स का भी रेगुलेशन करना है। कलीग्स अगर गलत रास्ते में जा रहे हैं तो उनको भी बताना है कि भाई देखो तुम ट्यूशन पढ़ाओगे, कल को सब ट्यूशन पढ़ाने लगेंगे, फिर अपने कॉलेज का नाम बदनाम होगा। और फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, प्रोजेक्ट का लोड टीचर्स, आपके पॉलिटेक्निक गुजरात का केस बताता हूँ। गुजरात में प्रोजेक्ट को लोग टीचर्स प्रोजेक्ट का लोड लेते थे 4 पीरियड्स 2 पीरियड्स, पर कुछ टीचर्स उस लोड को सीरियसली नहीं लेते थे, बच्चे फिर भी मार्केट से प्रोजेक्ट बनवाते थे। और ये बात एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास पहुंची और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने प्रोजेक्ट का लोड हटा दिया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में तो टीचर्स टाइम डिवोट करते ही नहीं है। पर ऐसा नहीं, बहुत सारे टीचर डिवोट करते थे, पर बहुत सारे टीचर नहीं करते थे, उसके कारण सजा सारे टीचर्स को भुगतनी पड़ी और वो विश्वास खत्म हो गया। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने कलीग्स को भी, आज हम क्या सोचते हैं यार हमें तो अपनी तनख्वाह मिल रही है, कोई गलती कर रहा है तो हम उसको क्यों समझाएं। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट आवर कलीग्स आल्सो, टू रेगुलेट आवरसेल्फ आल्सो, एंड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्रोफेशनल बॉडीज एंड मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस सो दैट वी कैन सेव आवर प्रोफेशन। पुराने जमाने में, मैं जात प्रथा की बात नहीं कर रहा हूं, पर पुराने जमाने में पंचायतें होती थी, जातियां होती थी, जो अगर जाति का कोई प्रोटोकॉल होता था, अगर उस जाति का प्रोटोकॉल तोड़ता था तो उसको जात के बाहर कर देते थे। तो ताकि उसका प्रोटोकॉल बना रहे, तो हम प्रोफेशंस की जो प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन रखें, तभी हम इथिकल बिहेवियर कर पाएंगे। और अगर हम इथिकल बिहेवियर नहीं करेंगे तो सस्टेन नहीं हो पाएगा। तो ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहली, प्रोफेशनल्स मास्टर ए बिग कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ नॉलेज। तो अगर आपने मास्टरी नहीं की है तो अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग, अगर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो आप फिर से पढ़िए। अगर आपने बी ठीक से नहीं किया, मास्टर्स ठीक से नहीं किया, पर अभी आप वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उन सब्जेक्ट पे मास्टरी कीजिए। देन लर्न न्यू नॉलेज। अगर आप न्यू नॉलेज तब तक नहीं लर्न कर पाएंगे जब तक कि आप पुरानी नॉलेज को मास्टरी नहीं करेंगे, क्योंकि वो नई नॉलेज तो उसी से निकल के आ रही है। थर्ड थिंग, यू शुड ऑलवेज थिंक दैट यू आर डीलिंग विद हाई स्टेक एक्टिविटीज। जो आपका काम है वो बच्चों का भविष्य बना सकता है, बिगाड़ सकता है। अगर आपने 1 साल ठीक से नहीं पढ़ाया तो उस बच्चे का 1 साल बर्बाद हो गया, उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। चौथी बात, आपका बिहेवियर से ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए। अगर ट्रस्ट खत्म हो गया तो आप चल नहीं पाएंगे। फिफ्थ, you should be self regulating. So these are the 5 important characteristics of professionals, और अगर ये करेंगे तो ऑटोमेटिक ethical behavior होगा। Okay, any questions please? Hello, any questions? मैं क्या समझूं, आप लोगों ने मेरी बात को कोई क्वेश्चंस, या आप लोग जल्दी हैं घर जाने में, ये समझूं? यस सर। या ये समझूं कि आपको मेरा क्वेश्चन था। हाँ सर, आपने बताया जैसे कि अभी जो भी गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी मुताबिक जो भी सैलरी का ग्रेड बनता है वो पीएचडी पे डिपेंडेड होता है। हाँ। तो वो क्लासरूम टीचिंग परफॉर्मेंस पे क्यों नहीं होता? अगर कोई अच्छा टीचर है, वो अपनी पूरी मेहनत लगाता है, अच्छा क्लास टीचिंग करता है और अच्छे बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, तो उस पर सैलरी डिपेंडेड होनी चाहिए। उसके लिए पीएचडी इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखिए, मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 थी, क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, ठीक है ना। अब वो प्रोफेशनल्स, देखिए स्कूल टीचर भी अच्छा पढ़ाता है और हायर एजुकेशन टीचर भी अच्छा पढ़ाता है। नाउ क्वेश्चन इज, आप न्यू नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, एक्चुअली उसको पीएचडी से जोड़ दिया गया है। पर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी या नो पीएचडी, रिसर्च कर रहे हैं और पेपर पब्लिश कर रहे हैं और वो वास्तव में अच्छे पेपर हो रहे हैं। पहले ऐसा था कि पीएचडी करना जरूरी नहीं था, बट अगर आपके अच्छे पेपर पब्लिश हो रहे हैं तो आपको प्रमोशन दिया जाता था। पर क्या होता है इंडिया में, क्या होता है कि इंडिया में लोग उसका मिसयूज करते हैं फिर, तो इसलिए वही तो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है ये कि जब ट्रस्ट खत्म हो गया फिर लोग, यार तुम कहीं भी, कई ऐसे जनरल है जिसमें पेपर पैसा दे के पेपर पब्लिश हो जाता है। लोग, पहले ऐसा रूल था कि अगर आपके 3 पेपर पब्लिश है तो दैट विल कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू पीएचडी। तो परंतु लोगों ने उसका मिसयूज किया। तो क्या है कि नॉलेज क्रिएशन तो इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो आप स्कूल टीचर हो, आप में क्या डिफरेंस है। अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे, न्यू नॉलेज क्रिएट नहीं कर रहे, तो वो इसलिए पीएचडी वहां इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर मैं, अगर मुझसे पूछा जाए और अगर सिस्टम में ईमानदारी है, तो जो अच्छे प्रोजेक्ट्स करवा रहा है, पीएचडी नहीं करवा रहा, मान लो पॉलिटेक्निक सिस्टम में पीएचडी नहीं, अच्छे प्रोजेक्ट्स करवा रहा है और प्रोजेक्ट में भी हमेशा न्यू नॉलेज क्रिएट होती है, भले ही वो एडवांस नहीं हो। कोई भी नया काम बच्चा अपने हाथ से करता है, तो अगर मान लीजिए मैं एक बच्चे को बोलूं कि चेयर बनाए, और उसको फर्नीचर, सिंपल चेयर बनाए, उसको फर्नीचर लकड़ी दे दूं, टूल्स दे दूं, तो वो जो चेयर बनाएगा वो ऐसी चेयर बनाएगा जो आज तक, उसका डायमेंशन तो अलग होगा, उसका शेप अलग होगा। तो न्यू नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि कोई नया डिस्कवरी करना, न्यू नॉलेज मतलब इंप्रूवमेंट भी न्यू नॉलेज है। आज अपन किसी चीज में हल्का सा इंप्रूवमेंट भी न्यू नॉलेज, जैसे रेजर है, रेजर ब्लेड है, आज से 20 साल पहले रेजर कैसा होता था, उस अभी रेजर ब्लेड में कितना चेंज हो गया, जो सेविंग रेजर है, या
टूथब्रश है, टूथब्रश पहले सिंपल होता था, फिर उसमें किसी ने फ्लेक्सिबिलिटी जोड़ी ताकि वो फ्लेक्सिबल होकर जैसे उंगली मुड़ सकती है मुड़े, फिर उसमें किसी ने सॉफ्ट मसड़ों के लिए सॉफ्ट ब्रिस्टल है, टीथ के लिए हार्ड ब्रिस्टल जोड़े, किसी ने उसके अंदर पीछे ग्रिप जोड़ी, किसी ने उसमें पीछे की साइड टोंग क्लीनिंग के लिए भी जोड़ा। तो इनोवेशंस आर आल्सो पॉसिबल। तो अगर पीएचडी से उसको एसोसिएट नहीं होना चाहिए, पर इंडियन सिस्टम में वो कर दिया गया है ड्यू टू मैल प्रैक्टिसेस, एंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर ट्रस्ट रहेगा तो सब कुछ रहेगा। ऑटोनॉमी दी जाती है, ऑटोनॉमी का मिसयूज होता है। आज इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी दी जाती है, तो इंस्टीट्यूशंस में की ऑटोनॉमी दी जाती है कि वो पढ़ाएं और अपना पेपर खुद बनाए, तो फिर वो पढ़ाते ही नहीं है, और जो 10 यूनिट है सिंपल पढ़ाया और सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए। दे आर मिसयूजिंग ऑटोनॉमी। तो फिर हायर एजुकेशन कैसे होगी? आप मास्टर्स में, मास्टर लेवल पे आप देखिए यूनिवर्सिटी लेवल कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स आर एबल टू अचीव 60% 70% विदाउट अटेंडिंग द क्लासेस। मास्टर का करिकुलम बी के करिकुलम से थोड़ा ही डिफरेंट है, जबकि विदेशों में मास्टर का करिकुलम बहुत एडवांस है। तो हम लोग ऑटोनॉमी को मिसयूज कर रहे हैं ना, इसलिए फिर गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटर है फिर वो अपना डंडा चलाते हैं। डू यू गॉट माय पॉइंट? हाँ, यस सर, आप एकदम राइट है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को, मुझे अभी साल में एक मैं अच्छी टीम ढूंढता हूँ, अच्छा बच्चा ढूंढता हूँ, उससे मैं अच्छा पेटेंट करवाता हूँ, अच्छा इनोवेशन करवाता हूँ, तो मुझे मेरा पीएचडी करना चाहिए या मुझे ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करके उनके पास इनोवेटिव प्रोजेक्ट करना चाहिए? देखिए, मैं आपको दोनों में से कुछ भी करो आपको फायदा होगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई ना कोई, आप जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं उनको कोई ना कोई मिल जाता है कदर करने वाला। जब आज गवर्नमेंट सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप अच्छे टीचर हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर लेगा, विदाउट पीएचडी आपको अच्छी सैलरी देगा। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं हु आर लुकिंग फॉर गुड टीचर्स। तो जो वन थिंग इज सिस्टम एंड वन थिंग इज इंडिविजुअल। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना से सभी लोग बीमार होते हैं, पर जो मरता कौन है? जिसको ऑलरेडी कोई कमजोरियां हैं। तो पर जिसने जो हमेशा एक्सरसाइज करता रहा, जिसने लाइफ स्टाइल सही थी, जिसको कोई दूसरी बीमारियां नहीं डेवलप हुई, कई को किस्मत खराब होने के कारण भी होती है, पर ज्यादातर लाइफ स्टाइल के कारण होती है। हार्ट ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये वो, या अभी सिस्टम कोरोना का चल रहा है, पर जो लोग अच्छे थे वो उसमें सरवाइव कर पा रहे हैं। सिमिलरली जब वन पॉलिटिकल एग्जांपल आई गिव कि जब बीजेपी की लहर आती है तो कांग्रेस के सब कैंडिडेट हार जाते हैं, पर कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट फिर भी जीतते हैं क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा काम कर रहे थे। सिमिलरली जब कांग्रेस की लहर आती है तो बीजेपी के ज्यादातर हार जाते हैं, पर फिर भी बीजेपी के कुछ लोग जीतते हैं क्योंकि वो अपने आप में अच्छा काम कर रहे हैं। तो वन थिंग इज सिस्टम, वन थिंग इज इंडिविजुअल। तो सिस्टम की कुछ मिस्टेक्स है, पर अगर इंडिविजुअल अपना अच्छा काम करता रहेगा तो अपॉर्चुनिटी विल कम, जबकि वो उस इंडिविजुअल को मौका मिलेगा। और जो उस सिस्टम के अंदर, सिस्टम में रह के आलसी हो गए, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो जब खराब समय आएगा तो वो नष्ट हो जाएंगे। और जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो उसका एडवांटेज ले पाएंगे। देयर इज अ सेइंग, when opportunity comes, only the prepared minds are able to avail that opportunity. तो जो लोग मैं बताता हूँ, आज से 2000 के तक तो प्राइवेट कॉलेजेस नहीं थे। तो 2000 के पहले जो प्राइवेट सरकारी कॉलेजेस थे, सिर्फ उसमें ज्यादातर कई टीचर्स मक्कार थे, पर जब वो रिटायर, उन्होंने कभी सोचा तो सर्विस करके हमारा को तनख्वाह मिल रही है, बट इन 2000 दे रिटायर्ड। पर जो अच्छे टीचर्स थे, जो मेहनती थे, जब 2000 वो रिटायर हुए तब तक प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए और वो 58 इयर्स की एज में रिटायर हुए और उनको प्राइवेट कॉलेजेस में वो दे वर्क अप टू 70 इयर्स ऑफ एज, दे अर्न द रेस्पेक्ट, दे अर्न द मनी। सो समय लाइफ बहुत बड़ी नहीं है तो बहुत छोटी भी नहीं है। सो अपॉर्चुनिटीज कम, जो कि काम करने वाले और मेहनत करने वाले को कहीं ना कहीं मौका देती है। तो आप अच्छा पीएचडी करें, अच्छे प्रोजेक्ट करें, अच्छा पढ़ाएं, आपको फायदा मिलेगा लाइफ में कहीं ना कहीं। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? हेलो हेलो, क्या सब लोग घर गए? नहीं सर, बैठे हैं। I think that there are no questions and people are writing that this was wonderful session. तो that means अभी भी बंदों में ताकत है, बैठे हैं और आधे घंटे और बैठने की ताकत है। Okay. So thank you very much sir. Yes sir. So I hope you all of you should read module M2 as much as possible, and then you will have more examples and more philosophical insight into these issues. Yes M2 sir, module आपका सेशन
चल ही रहा था तो मैंने हमारे कलीग से बात किया कि अब एथिक्स का मॉड्यूल पूरा पढ़ना पड़ेगा. So it was wonderful session, and on behalf of Government Polytechnic Palanpur Electrical Engineering Department, I Ashfaq Qureshi express my sincere gratitude towards Dr. S.K. Gupta sir for sparing his time for teaching us the value and ethics. And the second question was much more wonderful. What is professional ethics? Actually, now our vision is much more clear about what is professionalism and what is ethics, and how we can develop trust in the society, and we can count ourselves for the society, and we can do some efforts to enrich our education system. And I'm also very thankful to participants who are still with us and who are sincerely listening and thinking on views of shared by Dr. Gupta sir. And we are very thankful to sir, and we wish that in future we can have some more sessions like this. Thank you very much, sir. Thank you, Professor Qureshi, for giving me this opportunity, and for all participants for lively discussion. Okay, see you again. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you, I sir. take your Bye, leave. sir. Okay, bye.